problems. Okay, so this is the lecture number 3. Okay, today we are going to see the advanced part of your assembly language statements, right? So let me share the PPTs with you. Yes, is the screen visible? Hello? Hello? Yes, Yes, ma'am. ma'am, it's visible. Yes, ma'am. Okay. In yesterday's lecture, we have seen the types of statements. The first was a imperative, the second was a declarative, and third is what? Assembler directive. Okay, we have already seen this, and now you can identify the types of statements also. Okay. Okay, some kind of advanced assembler directives we also seen origin, EQ, and LTORG. Okay, so again I'm trying to say that origin comes in the picture when we want to modify the LC in the artificial way. Okay, the natural tendency of your LC is to incremented by 1. Okay, if we want to save particular instruction at our place or our designed place, then we need to use the origin keyword. Okay, or origin assembly directive. After that, EQU means what? Equal. Okay, it assigns the address, okay, which is at the right side of the EQU to the left side of your EQU. EQU के लेफ्ट साइड पे जो भी कोई सिंबल है उसके सामने जो राइट साइड पे एड्रेस या कोई वेरिएबल मेमोरी ऑपरेंड दिया होगा उसका एड्रेस वो इक्वल कर देगा. Okay, now third word is what? LTORG means what? Literal table origin. Okay, whatever the literals are present in your program, that this assembler directive LTORG gives the address to that literals. Okay, so whatever the literals are available in your program, the LTORG keyword gives the address to that literals only. Okay, and it maintains one table that contains the literals and its address. Okay, when we will see the example, you will get to know that what is the origin, what is the EQ, what is the LTORG. Okay, so this definition also we have seen. Okay, how LC operates. We know that start 100 means what? 100 is the current value of your LC, and that is to be used at the first line of your program. Now in this case the first line is what? Move R, not start 100. Okay, first actual program क्या है, कहाँ से start हो रहा है? Move R से start हो रहा है. Okay, start 100 is an instruction for the assembler. Okay, that start saving your program from the location 100. This is the instruction for the assembler. Okay, so actual line or first line of your program is what? Move R means what? Move R A R E G comma X. Okay, this line will save at the location 100. After that, next line is what? Move R B R E G comma Y. This line will save at the location 101. Okay, 100 के बाद 101, उसके बाद 102, 103, 104, 105. ओके, एंड पे क्या नहीं रहेगा? एलसी वैल्यू नहीं रहेगी. स्टार्ट के लिए भी एलसी वैल्यू नहीं रहेंगी. ओके, बिकॉज दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द असेंबलर. ओके, द सिमिलर वे 100, 101, 102, 103, 104, 105 likewise. Okay, so in this case identify the symbol, literals, AD, IS, DS and label. I think you आपने सॉल्व किया था ये प्रोग्राम? Yes or no? हेलो. Yes, ma'am. ओके, सो एक बार फिर से कर लेते हैं. आई एम मेकिंग वन चेंज इन दिस प्रोग्राम. ओके, so first line is what? Start 100 means what? This is an assembler directive. Okay, and it is having the value 100, that is the address. Okay, and the current value of LC will become 100. Okay, now second line is what? Your imperative statement. Okay, and ये is equal to 2 क्या है? It is an literal. Okay, literal always starts from is equal to 2. Okay, is equal to sign से. Okay, so now ये first line जो actual program की है, move r b r e g comma is equal to 2. okay, तो ये line किस location पे जाके सेव होगी? Yes, any answer? Hello, am I audible?
101. 101. No, that is wrong answer. 100. 100 because अभी मैं I repeat again, start 100 is an instruction. Okay, तो ये instruction क्या है कि आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम है उसे 100 लोकेशन से स्टार्ट सेव होने के लिए स्टार्ट कर दो. ओके, सेव होने के लिए स्टार्ट कर दो. आपके प्रोग्राम के एक्चुअल लाइन क्या है? मूव आर है. ये स्टार्ट 100 फर्स्ट लाइन नहीं है. इट इज एन इंस्ट्रक्शन. ओके, दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट. दिस इज ओनली इंस्ट्रक्शन. ओके, सो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स कहाँ से है? मूव आर से है. ओके, तो आपके प्रोग्राम की पहली लाइन जो है वो है मूव आर. ओके, और ये स्टार्ट 100 ये इंस्ट्रक्ट करता है असेंबलर को कि क्या आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो 100th लोकेशन को सेव होने के लिए स्टार्ट कर दो. ओके, तो मूव आर बी रजिस्टर ये लाइन मेरी जाएगी 100 लोकेशन पे. ओके, इसका एलसी वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे? 100. ओके, next line is again imperative statement. Okay, it is having one label which is loop. Okay, again it is having one memory operand. Okay, memory operand और variable ये इस लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? इसे symbol. Okay, तो ये n is a symbol here and areg is a register. Okay, again this line is what? Imperative statement. It is not an assembler directive. So what will be the address? What will be the LC value for this line? 101. 101 because your LC always incremented by 1. Okay, 101. Okay, now third line again the next अभी add है मतलब it is an imperative statement. Okay, imperative statement के पहले जो भी कुछ आता है ये है next, that is the label. Okay, labels are the optionals. Okay, optional आप रख सकते हो उसे. Okay, उसके बाद next add breg is equal to 1. Okay, so this is one literal. Okay, add breg, this is an imperative statement. Okay, again now tell me the LC value for this line. 102. 102 because your LC always incremented by 1. Okay, I will add some more lines to this program. For example, add areg comma you can say literal 6. Okay, one more line I need to add sub subtraction breg. Okay, comma let's say y. Okay, और हम यहाँ पे y को डिक्लेयर कर देते हैं. n के बाद y ds1. Okay, so I have done some modification. I have added 2-3 lines to this program to understand the use of origin and LTORG. Okay, so 102 तक किसी को डाउट है? कैसे आया, क्या आया? Any doubt in this? No, ma'am. No. Okay, now next line you can observe origin loop plus 5. Okay, so origin is what? Assembler directive. Okay, so ये कोई executable statement नहीं है. This is an instruction for the assembler. Okay, so origin क्या बता रहा है कि आपके LC की वैल्यू मॉडिफाई कर दो. LC नेचुरली कैसे बढ़ रहा था? +1 से बढ़ रहा था. 100 से वो 101 हो गया, 102 हो गया. ओके, नाउ आर्टिफिशियली और एक्सप्लिसिटली आपको क्या करना है? LC की वैल्यू अभी चेंज करनी है. ओके, तो हमें ओरिजिन का यूज करना होता है. ओके, सो ओरिजिन लूप +5. ओके, सो लूप कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है? लूप इज अ लेबल. ओके, जिस लाइन को वो डिक्लेयर हुआ है वो लाइन है 101. उसका एड्रेस क्या है? 101. और ये क्या बोल रहा है? लूप +5 मतलब क्या? 101 + 5 मीन्स व्हाट? 106. ओके, सो 106 यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है बाय सॉल्विंग लूप +5. अभी ये 106 ओरिजिन वाले लाइन पे आएगा या ऐड वाली लाइन पे आएगा? ऐड वाले लाइन पे. बिकॉज ओरिजिन इज एन असेंबलर डायरेक्टिव, सो 106 जो है मेरा वो कहाँ पे आएगा? ओरिजिन के बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसके लिए आएगा मेरा 106. तो यहाँ पे मेरा LC की वैल्यू आप देख सकते हो ऊपर कितनी है? 102 है और एक्सप्लिसिटली मैंने उसे चेंज किया है बाय विद द हेल्प ऑफ ओरिजिन 106. ओके, अभी नेक्स्ट लाइन क्या है मेरी? सब breg, y. ओके, नाउ टेल मी द LC वैल्यू फॉर दिस लाइन. 107. 107. वेरी गुड. ओके, सो अभी तक समझ में आया कि 106 कैसे आया, 107 कैसे आया. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? LTORG. अगेन दिस इज एन व्हाट? Assembler directive. Okay, so again it is saying
some kind of instructions for the assembler. So LTORG का full form क्या है? Literal table origin. Okay, so whatever the literals are present in your program, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उन लिटरल्स को एड्रेस प्रोवाइड करना है. ओके, सो लिटरल्स कैसे आइडेंटिफाई करना है? जिन कांस्टेंट वैल्यू के सामने इक्वल टू है वो सारे आपके क्या है? लिटरल्स हैं. ओके, सो LTORG के पहले आपको चेक करना है, आगे ऊपर चेक करना है. LTORG के ऊपर चेक करो आप फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. यस, आई एम गेटिंग 1 literal here is equal to 2 is the first literal, again is equal to 1 second literal and is equal to 6 is my third literal. Okay, so पहले स्टार्ट से पहले LTORG तक मेरे 3 literal है. ओके, सो LTORG एक ही बार आपके प्रोग्राम में आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं है, कितनी भी बार आ सकता है. ओके, सो हम क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल स्टार्ट LTORG आपको यहाँ दिख रहा है, तो फ्रॉम दिस स्टार्ट टू दिस LTORG, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? पुल. ओके, दिस इज माय फर्स्ट पुल. ओके, आर यू गेटिंग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पुल. Okay, so from first start to first LTORG, this is my first pull. Okay, now if one more LTORG present in this program, then first LTORG to second LTORG, that will be your second pull. Okay, अभी आप इस प्रोग्राम में ऑब्जर्व करो, आपके पास एक ही LTORG है, आफ्टर दैट क्या है? एंड है. ओके, सो start to first LTORG first pull and first LTORG to end is my second pull. ओके, सो इस प्रोग्राम में कितने पुल्स है? 2 पुल्स है. ओके, LTORG स्टार्ट, LTORG एंड LTORG एंड, 2 पुल्स है. एंड द फर्स्ट पुल में मेरे कितने लिटरल्स है? 3 लिटरल्स है, 2 1 एंड 6. ओके, तो ये LTORG क्या करता है? उसके पहले, LTORG के पहले जितने भी लिटरल्स है उनको एड्रेस प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि 2, ये मेरा लिटरल है, उसके बाद है मेरा 1, ओके, और उसके बाद है मेरा 6. ओके, तो फर्स्ट पुल में मेरे कितने लिटरल्स हुए? 3 लिटरल्स हुए. ओके, तो इनको एड्रेस प्रोवाइड करना है. तो एड्रेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? LC, लोकेशन काउंटर. तो करंट वैल्यू ऑफ योर LC इज व्हाट? 107. तो यहाँ पे क्या आएगी? 108. उसके बाद क्या आएगी? 109, बिकॉज LC ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय 1. आफ्टर दैट ये 6 कहाँ पे प्लेस होगा? किस मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव होगा? 110. यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कैसे आ गया और LTORG का यूज क्या है? यस, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम. एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट? शुड आई रिपीट दिस अगेन? नो मैम. ओके, सो इतना तो समझ में आ गया. 110. ओके, इट इज द लास्ट LC वैल्यू. ओके, नेक्स्ट लाइन ऑब्जर्व करो, ये क्या है? ओरिजिन. अगेन इट इज एन व्हाट? AD. अगेन इट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, इट इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द असेंबलर. नाउ अगेन ओरिजिन का मतलब आपको पता है कि LC की जो नॉर्मल वैल्यू है इसको चेंज कर दो. ओके, अभी ये क्या बोल रहा है कि ओरिजिन के आगे क्या है? नेक्स्ट प्लस 2. ओके, नाउ ऑब्जर्व द नेक्स्ट इन योर प्रोग्राम. कहाँ पे है नेक्स्ट? नेक्स्ट नेक्स्ट, फोर्थ लाइन पे नेक्स्ट है. ये लेबल है वो कहाँ पे सेव है? 102. मतलब 102 प्लस 2 विल बी योर 104. ओके, अभी 110 थी वैल्यू LC की. नाउ इस ओरिजिन ने क्या किया है? उस वैल्यू को चेंज किया है, और बाय सॉल्विंग दिस फॉर्मूला वी आर गेटिंग द वैल्यू एज अ 104, बिकॉज नेक्स्ट इज डिक्लेयर्ड एट 102. यहाँ पे है नेक्स्ट. ओके, और ये क्या बोल रहा है? +2 इसमें ऐड करो. 102 + 2 104. तो जो भी नेक्स्ट लाइन है वो कहाँ पे आ जाएगी? 104 पे आएगी. 104. ओके, उसके बाद अगेन आपका नॉर्मल LC इंक्रीमेंट होगा 105 करके. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? 106. ओके, इस तरीके से आपने क्या किया है? LC वैल्यूज को अप्लाई किया है. ओके, एंड के लिए क्या नहीं रहेगा? LC वैल्यू नहीं रहेगी, बिकॉज असेंबलर डायरेक्टिव्स के लिए LC वैल्यू नहीं रहती. आप ऑब्जर्व कर सकते हो, स्टार्ट के लिए है, नहीं है. ओरिजिन के लिए है, नहीं है. LTORG के लिए है, नहीं है. अगेन ओरिजिन के लिए है, नहीं है. एंड एंड के लिए भी नहीं है. तो ये आपका हो गया ऑपरेशन ऑफ LC और हाउ योर LC ऑपरेट्स. ओके, सो नाउ लास्ट स्टॉप. लास्ट इज एन अगेन लेबल. ओके, एंड स्टॉप इज माय इंस्ट्रक्शन और इट इज एन न्यूमोनिक. ओके, उसके बाद जो 2 स्टेटमेंट्स है वो कौन से है? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, बिकॉज इट कंटेन्स DC एंड DS. तो ये क्या करते हैं?
कि डीसी क्या करता है, एन की वैल्यू 5 को इनिशियलाइज करता है एज ए कांस्टेंट वैल्यू, एंड वाई क्या करता है, वाई के लिए 1 वर्ड ऑफ साइज मेमोरी अलोकेट करता है, बिकॉज इट इज डीएस, डिक्लेयर्ड स्टोरेज, यहाँ पे ये अलोकेट करता है, और डीसी क्या करता है, इसकी वैल्यू एन की वैल्यू 5 से इनिशियलाइज कर देता है. ओके, सो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड लिटरल्स. ओके, तो 5 इन दिस केस इज अ कांस्टेंट एंड 2 इन दिस केस एज अ लिटरल. जिसके सामने इक्वल टू है दैट इज योर लिटरल, एंड जिसके सामने इक्वल टू नहीं है दैट विल बी योर कांस्टेंट. ओके, एनी डाउट टिल नाउ? Am I audible? Do you want to repeat this program again? Yes ma'am, please repeat. Repeat करना है. Okay, so क्या समझ में नहीं आया वो बताओ बस, because this is the first step and it is very important. Yes, क्या समझ में नहीं आया? Okay, let's see again. So अभी हम देख रहे हैं कि how we are going to apply our LC, okay, to this program. Okay, this is my sample program. So it is starting from the start 100. It is an assembler directive and which tells the assembler to save your program from the location 100. Okay, so this is an instruction. This is not an executable statement. So executable statements कौन से होते हैं? IS होते हैं. Okay, तो move R, it is my first line, okay, of my program. So this line will save at the location 100. Okay, and the location counter जो है हमारा, okay, तो always क्या होता है, +1 से इंक्रीमेंट होता है. So next line आएगी 101 पे, थर्ड लाइन आ जाएगी 102 पे. okay, उसके बाद we observing this line, it is starting from the origin. okay, and origin is nothing but the assembler directive. okay, so it is an instruction for the assembler. okay, what is the instruction? To modify the LC value. okay, so कैसे modify करनी है, क्या वैल्यू करनी है, loop +5. तो loop आपको चेक करना है कहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है. loop यहाँ पे है. okay, loop जिस लाइन पे डिक्लेयर किया है उस लाइन का एड्रेस है 101. उसके बाद उसमें हमने +5 ऐड किया है, इट विल बिकम 106. okay, and that value is LC value, current LC value, and the next line should be stored at that location, that is 106 add arg is equal to 6. okay, उसके बाद नॉर्मल हमारा स्टेटमेंट है IS स्टेटमेंट, so 107. उसके बाद ऑब्जर्व करो LTORG, it is an again assembler directive. okay, so it is telling assembler that store your literals. जो भी literals आपने यूज किए हुए आपके प्रोग्राम में उनको स्टोर करो. okay, उनको स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए. मेमोरी वैल्यू कौन देता है हमें? LC, लोकेशन काउंटर. okay, so करंट वैल्यू थी 107. तो जितने भी हमारे LTORG के पहले लिटरल्स हमारे इस पूल में प्रेजेंट थे 216, ओके, उनको एड्रेस प्रोवाइड करो. सो पहले 216 आ जाएगा, उसके बाद 108, 109, 110, because your LC is incremented by 1. okay, so in this program there are 2 pools are available. okay, so start LTORG तक फर्स्ट पूल और LTORG से एंड तक सेकेंड पूल. okay, तो इसको मैं यहाँ पे मैंने एड्रेस प्रोवाइड करे हैं 110. After that, the next line is again AD, that is origin next +2. okay, तो current value थी LC की 110. Now origin is changing that value again. So क्या बोल रहा है अभी origin? next +2. so next कहाँ पे है आपको देखना है, next यहाँ पे है और वो कहाँ पे सेव है 102 पे. so 102 + 2 104. तो next line आ जाएगी 104 पे. तो last stop मेरा सेव हो रहा है 104 पे. उसके बाद it is incremented by 11, 105, 106. okay, ये से हो गया आपका LC ऑपरेट. okay, now my question to you is that if LTORG is not present in your program, okay, LTORG आपके प्रोग्राम में प्रेजेंट नहीं है लेकिन लिटरल्स है द सेम प्रोग्राम, बस आपका LTORG यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. okay, so and it is necessary to give the address to literals. okay, whenever you are going to assemble any kind of program, it is a mandatory to give the address for the literals. okay, so to give the address to literals is the work of your LTORG. okay, and I am saying that LTORG is not present in your program, then what will happen? yes, any idea? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं बोल रही हूँ कि आपके प्रोग्राम में LTORG प्रेजेंट नहीं है. ओके, एंड जब भी आप कोई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यूज करते हो, असेंबल करते हो या कंपाइल करते हो, दैट इज द नेसेसरी थिंग टू गिव द एड्रेस टू द लिटरल्स. ओके, लेकिन LTORG तो प्रेजेंट है नहीं, तो क्या करना होगा, कैसे और कहाँ पे उनको एड्रेस प्रोवाइड करना होगा?
Any idea? Yes. So the answer is when L2RG is not present in your program, then you have to give the addresses to the littles after your end. Okay? Start, उसके बाद प्रोग्राम, देन एंड, और एंड के बाद जितने भी लिटरल्स आपके प्रोग्राम में अवेलेबल थे उनको क्या करना है, आपको एड्रेस प्रोवाइड करना है. ओके, इफ द LTRG इज नॉट प्रेजेंट इन योर प्रोग्राम. ओके, डन? एनी डाउट? यस, एनी डाउट? 106 दो बार आया है. हाँ, सो दीज आर द, हाँ 106 दो बार आ गया है. ओके, तो ये वाली लाइन पे ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी. ओके, दैट इज द टेक्निकल थिंग. हम अभी सिंटैक्स एंड ओवरराइट उसमें नहीं, हम देख क्या रहे एलसी कैसे ऑपरेट होता है या असेंबलर कैसे वर्क करता है. ओके, तो आपको लग रहा होगा कि 106 लोकेशन पे एड ARG 6 भी है और अभी आप बोल रहे कि YDS 1 भी है. ओके, सो वट एवर द थिंग which came late, then that thing will override the previous one. मतलब यहाँ पे जो भी था add ARG is equal to 6, ये override हो जाएगा YDS 1 से, मतलब ये चला जाएगा, उसके बदले क्या आ जाएगा, YDS 1. ओके, so 106 एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, we don't care, we just observing the working of your assembler directives. in this case कैसे assembler directives work करते हैं, origin कैसे LC को change करता है, that is the thing of the processor देख लेगा ओवरराइट करना है या क्या करना है. ओके, बस हमें अभी क्या देख रहे हैं, हाउ योर LC ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ योर ADs और origin कैन से. एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? No, ma'am. Okay, so we will move to the next slide. Okay, I think ये सारी चीजें हमने in yesterday's lecture देखी हुई थी. Okay, so in this case what we need to, our focus for the unit number 1 is what we are going to develop, we are going to build an assembler. Okay, so assembler बनाने के लिए पहले कोई assembly language का एक प्रोग्राम होना चाहिए. Okay, हमारे पास एज ए इनपुट. ओके, और जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था कि हर एक मशीन की असेंबली लैंग्वेज अलग अलग होती है. सो आपके मशीन की अलग है, मेरे मशीन की अलग है, तो हमें इतने सारे मशीन की लैंग्वेजेस स्टडी करनी पड़ेगी ताकि हम एक असेंबलर बना सके. सो ये सारी डिफिकल्टीज दूर करने के लिए आपके जो ऑथर है, ढमढेरे बुक में जो ऑथर है, उन्होंने क्या किया है, एक हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज बनाई है. मतलब दिस इज एन इमेजिनरी लैंग्वेज, ये किसी भी प्रोसेसर में यूज नहीं होती है, बस एक छोटी सी लैंग्वेज उन्होंने बनाई है और उसके लिए आपका असेंबलर कैसे वर्क करेगा ये उन्होंने उस बुक में बताया है. ओके, तो उस हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज में क्या है, इट सपोर्ट्स 4 रजिस्टर्स AREG, BREG, CREG एंड DREG. ओके, एंड इट सपोर्ट्स 11 निमोनिक्स. 11 निमोनिक्स आपने देखे होंगे, स्टॉप, ऐड, सब, मल्ट, मूव, कॉम, कंपैरिजन, ब्रांच ऑन, कंडीशन, DIV, रीड एंड प्रिंट. दीज आर 11 डिफरेंट निमोनिक्स. ओके, सो ये सारी चीजें आपको दी हुई है, ऑथर ने ही दी हुई है. ओके, और कुछ रूल्स दिए हैं. कुछ रूल्स मतलब क्या, फॉर्मेट कैसे होना चाहिए आपके एक लाइन का. ओके, तो ऑपकोड मतलब क्या, ऐड, सब, मूव, DIV, div, रीड, प्रिंट, ये है ऑपकोड. मतलब 11 निमोनिक में से एक कोई भी तो यहाँ आएगा ऑपकोड में. ओके, आफ्टर दैट रजिस्टर ऑपरेंड मतलब क्या, AREG और BREG, CREG और DREG. ओके, इनमें से कोई एक. ओके, मेमोरी ऑपरेंड मतलब क्या, एनी वेरिएबल्स. अभी वेरिएबल्स में को हम क्या बोलेंगे, सिंबल्स. Okay, so any symbol which is present in your program, that will be your memory operand. Okay, for example, in previous case n is what, n is symbol. Okay, so यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है n क्या है, it is a variable. Okay, in this hypothetical language we are calling it as a symbol. Okay, so n is a memory operand और symbol. Again y is a memory operand और a symbol. So यहाँ पे क्या आना चाहिए, n आना चाहिए या y आना चाहिए. Okay, so ये जो फॉर्मेट है ये इसी तरीके से होना चाहिए. ओके, सो आप ऐसे नहीं लिख सकते. फॉर एग्जाम्पल एड. ओके, एड इज ऑपकोड, रजिस्टर ऑपरेंड B रजिस्टर, और यहाँ पे होना चाहिए X, Y, N, Y, whatever the memory operand you are declaring in your program, that should be here. ओके, तो आप कैसे नहीं लिख सकते, एड N एंड BREG, मतलब रजिस्टर ऑपरेंड आप सेकेंड ऑपरेंड में लिख रहे हो और मेमोरी ऑपरेंड फर्स्ट में, ऐसे नहीं लिखना चाहिए आपको. दैट इज द रॉन्ग फॉर्मेट फॉर दिस हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज. तो ऑलवेज आपका ऑपकोड पहले आना चाहिए. ऑपकोड के पहले लेबल आ सकता है, दैट इज ऑप्शनल. ओके, सो लेबल
ऑपकोड, रजिस्टर ऑपरेंड एंड मेमोरी ऑपरेंड। मेमोरी ऑपरेंड आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, रजिस्टर ऑपरेंड के बदले मेमोरी ऑपरेंड नहीं लिख सकते। मेमोरी ऑपरेंड ऑलवेज सेकेंड ऑपरेंड होना चाहिए और रजिस्टर ऑपरेंड ऑलवेज फर्स्ट ऑपरेंड होना चाहिए। गेटिंग इट? Are you getting my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is the rule. Okay. And some another rules is what already we have seen. Okay. जो भी अपने मैंने अभी बोला है, the first operand always a CPU register, मतलब AREG, BREG, CREG, DREG, इनमें से कोई एक। ओके। सेकेंड ऑपरेंड इज ऑलवेज मेमोरी ऑपरेंड, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा था N and Y, उनमें से कोई एक मेमोरी ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड में होना चाहिए। ओके। सो 11 निमोनिक में से रीड एंड प्रिंट, ये जो दो इंस्ट्रक्शंस है या निमोनिक्स है, वो फर्स्ट ऑपरेंड नहीं यूज करते। मतलब रीड के साथ हमेशा N आएगा या Y आएगा, या कोई भी जो आप अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करोगे। प्रिंट के साथ भी N आएगा, Y आएगा, AREG BREG नहीं आएगा। मतलब रजिस्टर के साथ रीड एंड प्रिंट काम नहीं करते। रजिस्टर के साथ ओनली अदर जो 11 में से रीड एंड प्रिंट को छोड़ के है, वो सारे रजिस्टर के साथ काम करते हैं, लेकिन रीड एंड प्रिंट नहीं करते। ओके। और स्टॉप इंस्ट्रक्शन डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑपरेंड, स्टॉप अकेले ही आता है। स्टॉप के साथ एक लेबल आ सकता है, लेकिन दोनों भी ऑपरेंड यहाँ पे नहीं आएंगे। स्टॉप अकेले ही आता है। स्टॉप मतलब क्या? करंट इंस्ट्रक्शन को स्टॉप करो। ओके। रीड मतलब क्या? कुछ वैल्यू मेमोरी से प्रिंट रीड करो। प्रिंट मतलब क्या? कुछ वैल्यू यूजर के लिए प्रिंट कर दो। ओके। सो दीज आर द रूल्स फॉर दिस हाइपोथेटिकल असेंबली लैंग्वेज। ओके। Any doubt in this? Hello? No, ma'am. No. Okay. So now we are going to start our assembler, how your assembler works. Okay. So for this we have some machine opcodes and symbolic opcode. Okay. First of all, try to understand that what is our motive. Our motive is what? To take an assembly language program as an input and convert it into the machine language. Machine language means what? Binary language. Okay. Binary language में क्या करना है? Convert करना है. That is our motive. Okay. And for that purpose we are using or we are developing the assembler. Assembler is nothing but the translator which takes the assembly language program as input and it gives a machine language output. Okay. So for this purpose we need to take some opcodes. Okay. So symbolic opcodes we can say. Okay. So each symbolic opcode means what? We are add, sub, AREG, BREG, your assembler directives. Okay. तो इनके लिए हर एक जगह पे machine opcode assign किया हुआ है, associate किया हुआ है। Okay. Machine opcode मतलब क्या है? एक any binary value. Okay. But in this case, to remember all these binary values will be very difficult. So we are taking as a decimal. Decimal मतलब क्या? 00, 01, 02, 03. Okay. Instead of taking binary, आउटपुट हमारा बाइनरी में आएगा, लेकिन हम सारा बाइनरी को लैंग्वेज नहीं लिख सकते। ओके। फॉर द सिंप्लिसिटी वी आर यूजिंग हियर डेसिमल, बट दैट थिंग इज एक्चुअली इन द बाइनरी। ओके। सो हम क्या कर रहे हैं अभी? ये जो सारे मेरे निमोनिक्स थे, स्टॉप को अभी हम बोलेंगे 00, ऐड को हम बोलेंगे 01, सब को हम बोलेंगे 02, मल्ट को हम बोलेंगे 04। लाइकवाइज हम क्या कर रहे हैं? इनको एक मशीन ऑपकोड असाइन कर रहे हैं। ओके। तो हर एक चीज के लिए, मतलब सिर्फ ये 11 निमोनिक्स है, जो 5 असेंबलर डायरेक्टिव्स है, उनको भी हम क्या करेंगे? AREG, BREG, CREG के लिए भी 01, 02, 03, 04 ये असाइन करके रखेंगे। ओके। बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट दिस लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। ओके। सो वी आर असाइनिंग सम मशीन ऑपकोड्स और मशीन कोड्स टू दिस सिंबॉलिक ऑपकोड। सिंबॉलिक ऑपकोड मतलब क्या? AREG इज माय सिंबॉलिक ऑपकोड। ओके। और उसका मशीन ऑपकोड में आई एम सेइंग 01, BREG is my symbolic opcode. Okay. 02 is the machine opcode. Likewise. Okay. Similarly हम क्या करेंगे? यहाँ पे उनको एक opcode बना के देंगे। Okay. और उस opcodes को हम क्या करेंगे? एक machine opcode table, that is MOT, उसमें जाके सेव करेंगे। मतलब एक टेबल बनाएंगे, उसमें ये सारी चीजें होंगी और उसको कौन से ऑपकोड से असाइन किया है, एसोसिएट किया है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डालेंगे। ओके। सो एमओटी टेबल में क्या क्या होना चाहिए? ऑपकोड इन निमोनिक फॉर्म। ऑपकोड मतलब क्या? ऐड। ओके। निमोनिक है, ऐड। ओके। और सेकेंड जो है मेरा मशीन कोड एसोसिएटेड विद दैट ऑपकोड। ओके। तो ऐड के लिए मैं बोल रही हूँ 01, तो ऑपकोड निमोनिक फॉर्म में आएगा ऐड एंड मशीन कोड उसका आएगा 01, सब 02, मल्ट 03, लाइकवाइज। ओके। तो आपको पूरा टेबल आपको बनाना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। सिंबॉलिक ऑपकोड मेरा है स्टॉप। ओके। और मशीन ऑपकोड और मशीन कोड फॉर दिस ऑपकोड आई एम गिविंग इट एज 00। ओके। और इसकी साइज जो है हम अभी 1 वर्ड कंसीडर कर रहे हैं। ओके। इट इज एन इमेजिनरी साइज, 1 वर्ड ऑफ साइज।
ओके। आफ्टर दैट ऐड 01, सब 02, मल्ट 03। तो 11 जो मेरे निमोनिक्स है उनको मैंने क्या किया, कोड्स असाइन किए, मशीन कोड्स। ये एक्चुअली बाइनरी में होते हैं बट इट विल बी डिफिकल्ट, अभी इसके लिए नहीं करना है, हमें सारी चीजों के लिए करना है। फॉर सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग इट एज एन डेसिमल। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑप कोड्स असाइन किए। क्यों किए हैं वो आगे आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है, आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कोड आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से ये करना है, तो इसके लिए प्राइमरी स्टेप क्या है कि आप आपके सिंबॉलिक ऑप कोड को मशीन कोड असाइन करो। ओके, एनी डाउट टिल नाउ? हेलो, नो मैम। ओके, सो नेक्स्ट, अभी ये हो गए निमोनिक्स। नेक्स्ट जो है मेरे क्या है, असेंबली डायरेक्टिव्स है, स्टार्ट, एंड, LTRG, ओरिजिन एंड EQ। तो उनके लिए भी मैंने क्या किया है, 01, 02, 03, 04, 05 मैंने कोड, मशीन कोड असाइन किया है। स्टार्ट के लिए जैसे 11 निमोनिक के लिए किया था, सिमिलरली मेरे 5 असेंबली डायरेक्टिव है, उनके लिए भी मैंने क्या किया है, मशीन कोड असाइन किया है। उसके बाद जो मेरे DS एंड DC है उसके लिए भी मैंने क्या किया है, 01 एंड 02 असाइन किया है। और उसके बाद जो मेरे आते हैं रजिस्टर्स, AREG, BREG, CRG, DRG, उनको भी मैंने क्या किया है, 01, 02, 03, 04 असाइन किया है मशीन कोड, यू कैन से। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या किया है, सारे निमोनिक्स को, सारे रजिस्टर्स को, सारे असेंबली डायरेक्टिव्स को कोड्स असाइन किए हुए। ओके, दिस इज अ वेरी प्राइमरी स्टेप। ओके, नाउ मैन्युअली पहले करते हैं कि असेंबलर कैसे ट्रांसलेट करेगा इनटू द बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को कैसे ट्रांसलेट करेगा बाइनरी लैंग्वेज। ओके, सो ये मैन्युअली पहले करते हैं, उसके बाद हम खुद असेंबलर बनाएंगे या बनेंगे। ओके, so first of all an assembly language program can be translated into the machine language. Okay, so that's why that is the motive of your assembler, to translate the assembly language program into the machine language. Okay, ये किस तरीके से करता है? Okay, it is having some steps. So first step is what? Find the addresses of variable. ओके, जो भी वेरिएबल्स है आपके प्रोग्राम में, अभी वेरिएबल्स को आपको क्या बोलते हो, सिंबल्स बोलते हो। ओके, तो सिंबल्स के एड्रेसेस फाइंड आउट करो। ओके, उसके बाद रिप्लेस सिंबॉलिक एड्रेसेस बाय द न्यूमेरिक एड्रेसेस। ओके, सिंबॉलिक एड्रेस क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल n एंड y, दो सिंबल्स आपके हैं आपके प्रोग्राम में, n एंड y। ओके, तो n के बदले क्या लिखो, एक्चुअल एड्रेस लिखो, n कहाँ पे स्टोर है वो एड्रेस लिखो। y के बदले क्या लिखो, y कहाँ पे एक्चुअल में स्टोर है वो लिखो। फॉर एग्जांपल 106 पे n स्टोर है, 107 पे y स्टोर है। तो सिंबॉलिक एड्रेसेस मतलब n जहां जहां आपके प्रोग्राम में आपको दिखाई देगा, आप वहां पे क्या लिखोगे, 106 लिखोगे। जहां जहां आपको y दिखाई देगा वहां पे आप क्या लिखोगे, 107 लिखोगे। ओके, सो दिस इज द स्टेप नंबर 2। ओके, आफ्टर दैट रिप्लेस सिंबॉलिक ऑपकोड्स बाय द मशीन ऑपरेशन कोड्स। ओके, जो भी हमने अभी टेबल्स देखे थे उसमें क्या है, मशीन कोड्स है। ओके, तो सिंबॉलिक ऑपकोड, फॉर एग्जांपल जहां पे आपको ऐड दिखाई दे रहा है तो वहां पे ऐड के लिए हमने 01 बनाया था, तो 01 वहां पे लिख दो। ओके, जहां पे आपको BREG रजिस्टर दिखाई देगा वहां पे 02 आप लिखेंगे। ओके, बाय ऑब्जर्विंग, बाय टेकिंग द कैलकुलेशंस फ्रॉम दिस टेबल्स। ओके, जो भी आपने टेबल में असाइन किया हुआ है वो ऑपकोड आप लेंगे और वहां पे जहां जहां आपको सिंबॉलिक ऑपकोड दिखाई देगा वहां पे आप क्या करोगे, वो कोड लिखोगे। ओके, एंड द फोर्थ स्टेप इज नॉट डन बाय अस, इट इज डन बाय द प्रोसेसर। रिजर्व स्टोरेज फॉर द डेटा, जो भी डेटा आपको मिलता है उसके लिए स्टोरेज रिजर्व करो। दिस इज द 4 स्टेप्स टू कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द प्रोग्रामर। ओके, एज अ प्रोग्रामर, असेंबलर बहुत अलग तरीके से करता है ये सारी चीजें, स्टेप बाय स्टेप करता है। ओके, सो लेट्स सी वन सिंपल एग्जांपल फॉर दिस 4 स्टेप्स। ओके, ओके, स्टेप नंबर 1 क्या है, फाइंड द एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, आप यहाँ पे और लिख सकते हो, सिंबल। सिंबल में लेबल भी आते हैं और वेरिएबल्स भी आते हैं। ठीक है, सो फाइंड द एड्रेसेस ऑफ सिंबल्स। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, एड्रेसेस फाइंड आउट करने में। सो एड्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लोकेशन काउंटर, जैसे कि हमने देखा था। ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिफाई द ऑल द वेरिएबल्स इन योर प्रोग्राम। ओके, तो कौन कौन से वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट करना है, जहाँ पे DS एंड DC है उसके पहले लेफ्ट साइड पे जो होते हैं वो होते हैं सिंबल्स और द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे इन दिस प्रोग्राम X एंड Y आर द सिंबल्स और द वेरिएबल्स। ओके, मैंने फाइंड आउट किया है, वेरिएबल्स मेरे 2 है। ओके, अभी इन वेरिएबल्स के एड्रेसेस मुझे चाहिए, X कहाँ पे स्टोर है, Y कहाँ पे स्टोर है, ये किस तरीके से मुझे मिलेगा, बाय अप्लाइंग द LC। ओके, सो LC कहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट लाइन से, मतलब मूव R से
स्टार्ट होगा, मूव आर पे आएगी एलसी की वैल्यू 100, उसके बाद आएगी 101, उसके बाद आएगी, यहाँ पे अभी असेंबली डायरेक्टली में दिखाई दे रहा है तो डायरेक्टली वो +1 से इंक्रीमेंट होगा, 102, 103 एंड 104। ओके, तो यहाँ पे मैंने लोकेशन काउंटर को अप्लाई किया हुआ है। नाउ यू पीपल ऑब्जर्व दिस प्रोग्राम एंड टेल मी द एड्रेसेस ऑफ एक्स एंड वाई, कहाँ पे एक्चुअल में मेमोरी में एक्स एंड वाई स्टोर है। 104 एंड 105। वेरी गुड, 104 एंड 105 पे x एंड y स्टोर्ड है। ओके, आप बोल सकते हो कि x यहाँ पे है मतलब 100 पे भी सेव है, y यहाँ पे मतलब 101 पे भी सेव है, अगेन x आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 102 एंड 103 पे, लेकिन डिक्लेरेशन कहाँ पे हुआ है उनका, इन 2 लाइन पे हुआ है। ओके, तो मेमोरी में वो कहाँ पे स्टोर है, x एंड y 104 एंड 105 पे सेव है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारी, फाइंड द एड्रेसेस ऑफ योर वेरिएबल्स और द सिंबल्स, वो जो है वो है 104 105। दो ही मेरे सिंबल्स थे मेरे प्रोग्राम में, यहाँ पे कोई लेबल नहीं है, कुछ नहीं है, एक्स एंड वाई 2 सिंबल्स हैं, तो उनके एड्रेस मुझे मिले हैं 104 एंड 105। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड द एड्रेसेस ऑफ योर सिंबल्स, ओके, और वेरिएबल्स। ओके, नाउ रिप्लेस सिंबॉलिक एड्रेसेस बाय न्यूमेरिक एड्रेसेस। ओके, तो ये एक्स एंड वाई इज द सिंबॉलिक एड्रेस, x and y are the symbolic address, उनको रिप्लेस करना है बाय न्यूमेरिक एड्रेस। न्यूमेरिक एड्रेस मतलब क्या, 104 and 105। ओके, सो yes, same thing I have done with the help of table 100 and 104 105 पे आपको क्या मिल रहा है, x की वैल्यू मिल रही है। ओके, सो x का एड्रेस क्या है, 104 105, y का है। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप क्या है मेरी, रिप्लेस ऑल सिंबॉलिक एड्रेसेस विथ न्यूमेरिक एड्रेस। ओके, सो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे उनका एड्रेस जाके पेस्ट करो। ओके, x का एड्रेस था 104, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो x के बदले आएगा 104, y के बदले आएगा 105। अगेन यहाँ पे x है 104, यहाँ पे भी x है तो 104, और ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है तो उनको आपको हाथ नहीं लगाना है, जस्ट एज इट इज लिखना है। तो जहाँ पे मेरा x था मैंने वहाँ पे एड्रेस लिखा, जहाँ जहाँ मेरा y था वहाँ पे मैंने उसका एड्रेस लिखा। एनी डाउट इन स्टेप नंबर 2? यस, एनी डाउट इन स्टेप नंबर 2? No, ma'am. Yes. No. Okay. So next is what step number 3. Okay. बस स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है, रिप्लेस ऑल सिंबॉलिक ऑपकोड्स बाय मशीन ऑपरेशन कोड्स। ओके, जो भी हमने टेबल बनाए थे हर एक के लिए हमने कुछ डेसिबल नंबर असाइन किए थे, तो रिप्लेस करना है। ओके, सो यहाँ पे पहली लाइन जो है, अभी स्टार्ट एंड एंड को हमने निकाला है। ओके, क्योंकि दीज आर द सिमिलर डायरेक्टिव्स, ओनली आईएस जो होते हैं हमारे वो यहाँ पे लेने हैं, डीएस को भी हमें निकालना है। डीएस एंड एडीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द असेंबलर, एंड एग्जीक्यूटेबल कोड कौन सा होता है, जितने भी आपके आईएस है इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स है उनको आपको लिखना है। ओके, सो फर्स्ट सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, एक्स एंड वाई के एड्रेसेस हमने लिख लिए थे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिप्लेस ऑल द सिंबॉलिक ऑपकोड्स बाय द मशीन ऑपरेशन कोड्स। ओके, तो मूव आर का जो मशीन कोड है वो आपको कहाँ मिलेगा, एमओटी में मिलेगा, जो हमने अभी बनाया था यहाँ पे। ओके, ये एमओटी है, निमोनिक ऑपकोड टेबल। तो मूव आर का मशीन कोड क्या है, 04। तो आपको क्या करना है, मूव आर का मशीन कोड जो है वो वहां पे लिख देना है। जस्ट अ सेकेंड, स्लाइड कर रही हूँ। ओके, सो मूव आर का जो मशीन कोड था 04 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए रजिस्टर का, ए आर का भी मशीन कोड था 01, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 104 एज इट इज। सिमिलरली मूव आर 4 मशीन कोड है उसका 04, बी आर का 02 है बाय ऑब्जर्विंग दैट टेबल, एंड 105 एज इट इज। अगेन एड के लिए 01 है, ए आर के लिए 01 है, और 104 एज इट इज। और मूव एम ए आर उनके लिए 05 मूव एम के लिए है, और ए आर के लिए 01 है, और 104 एज इट इज। ओके, एंड दिस इज योर मशीन कोड। ओके, दिस शुड बी इज एन एक्चुअली बाइनरी। ओके, ये सारी चीजें बाइनरी में रहती है, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग इट एज अ डेसिमल। ओके, तो ये हो गया आपका बाइनरी प्रोग्राम। इस तरीके से असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज कोड को इनपुट एज लेता है, उनको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में इन तरीकों से। ओके, दिस इज बाय द प्रोग्रामर। लेकिन असेंबलर कुछ अलग तरीके से करता है, हमें सारी चीजें दिखाई देती है, एड्रेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन असेंबलर थोड़ा अलग तरीके से, बहुत इनके जो स्टेप्स होते हैं असेंबलर के वो डिटेल में होते हैं। ओके, तो वो हमें
देख रहे हैं आगे। तो इस ये वाला हमारा फाइनल आउटपुट ये आने वाला है। ओके, तो ये आउटपुट लाने के लिए हमें दो स्कैन्स के थ्रू जाना पड़ता है, पास वन असेंबलर एंड पास टू असेंबलर। ओके, तो उन दोनों का वर्किंग क्या है ये आगे आपको मैं बताऊंगी। ओके, एंड स्टेप नंबर 4 जो है वो रिजर्व डेटा फॉर द रिजर्व स्टोरेज फॉर द डेटा, तो वो असेंबलर या प्रोसेसर खुद कर लेगा। ओके, दैट इज द ओनली थिंग। ओके, एनी डाउट इन दिस? तो ये जो है मशीन कोड है, या आप बोल सकते हो बाइनरी कोड है, इसमें हमें फाइनल आउटपुट लाना है। यस, एनी डाउट इन दिस? Am I audible? Yes, ma'am. No doubts. No doubts. Okay, so this is what the working of your assembler. Okay, by the programmer. Okay, so this is a question for you. Same आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये लिख लोगे या स्क्रीनशॉट लोगे? लो और मुझे सॉल्व करके दो। सॉरी, so this is the question. या अभी मैन्युअली सॉल्व करेंगे, हम दोनों सॉल्व करते चलेगा? Yes, ma'am. Okay, so ठीक है। So again a question here. So it is starting from 102. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सारे वेरिएबल्स जो है सिंबल्स है उनके एड्रेसेस फाइंड आउट करो। ओके, सो सिंबल्स कैसे आइडेंटिफाई करना है? डीएस एंड डीसी के सामने जो भी कुछ है वो आपके होते हैं सिंबल्स। तो इस केस में क्या है? एक्स, एंड इस केस में है वाई। तो दो सिंबल्स यहाँ पे है, तो इनके एड्रेसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। ये कहाँ पे स्टोर है? वो एड्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एलसी को अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो एलसी को कैसे अप्लाई करोगे? स्टार्ट से। ओके, स्टार्ट 102, मतलब एलसी की वैल्यू क्या हुई? 102। ओके, तो ये 102 वैल्यू किसकी होगी? रीड की होगी, बिकॉज इट इज एन निमोनिक। ओके, सो रीड एक्स की एलसी वैल्यू क्या रहेगी? 102। सिमिलरली रीड वाई की क्या रहेगी? 103। ओके, उसके बाद थर्ड लाइन अगेन इंपेरेटिव स्टेटमेंट है। सो 104, यहाँ पे कोई एडी नहीं आ रहा है, ओरिजिन भी नहीं है, सो इट विल इंक्रीमेंटेड बाय प्लस ओनली 105। ओके, उसके बाद 106, उसके बाद 107। नाउ स्टॉप इज एन निमोनिक, इट इज नॉट एन असेंबली डायरेक्टिव। तो अगेन 108, 109, 110 एंड 111। यस, एनी डाउट? कैसे मैंने एलसी को अप्लाई किया? इन बीच में कहा भी ये नहीं था, ओरिजिन नहीं था, एलटी ओरिजिन नहीं था, सारे के सारे क्या थे? आईएस थे। सो आपका जो एलसी है वो +1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, तो आफ्टर अप्लाइंग द एलसी वैल्यूज आई एम गेटिंग द एड्रेसेस ऑफ योर एक्स, वाई एंड रिजल्ट। ओके, यहाँ पे 3 सिंबल्स है, एक्स, वाई एंड रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे भी डीएस है ना। तो यहाँ पे क्या है? 3 सिंबल्स है। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? फाइंड द एड्रेसेस ऑफ योर वेरिएबल्स और सिंबल्स। तो x and y result, these are my 3 symbols and the addresses are 109, 110 and 111. Clear the first step? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. Yes, ma'am. So now now what we need to do? The second step. Second step क्या बोलता है? Replace all the symbolic addresses by its numeric address. Okay. So I'm copying this program again in the next slide. Okay. तो ये मेरा ओरिजिनल था। अभी यहाँ पे मुझे सेकेंड स्टेप को अप्लाई करना है कि जहाँ जहाँ पे आपको आपके सिंबल्स दिखाई देंगे, सिंबॉलिक एड्रेसेस, वहाँ पे आपको न्यूमेरिक एड्रेस को प्लेस करना है। तो फर्स्ट इज माय एक्स, एक्स को मुझे रिप्लेस करना है। एक्स का एड्रेस क्या है? 109। ओके, वाई का एड्रेस क्या है? 110। ओके, उसके बाद अगेन यहाँ पे मुझे एक्स दिखाई दे रहा है, उसके बदले 109। अगेन वाई दिखाई दे रहा है, वाई के बदले 110। ओके, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है रिजल्ट, रिजल्ट इज एन ऑल्सो सिंबल। सो रिजल्ट का सिंबल, रिजल्ट का एड्रेस क्या है? 111। ओके, सो उसके बाद अगेन मुझे यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है, सो 111।
स्टॉप लाइकवाइज। ओके, तो ये सारी चीजें क्या हुई मेरी, VLC वैल्यूज को मैं हटा देती हूँ सो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं इनको रेड कर देती हूँ। सो इग्नोर दिस, रेड पार्ट इज फॉर इग्नोर, क्योंकि अभी ये फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा पूरा। तो सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया है, सारे के सारे सिंबॉलिक एड्रेसेस न्यूमेरिक एड्रेस से रिप्लेस किए हुए हैं। थर्ड स्टेप क्या है मेरी, कोई बता सकता है? कन्वर्ट टू मशीन कोड। यस, जो भी आपके ऑपकोड्स है, ओके, उनको क्या करना है आपको मशीन कोड्स में रिप्लेस करना है। तो मशीन कोड कहाँ पे मिलेंगे, जो हमने एक टेबल बनाया था। रेड पार्ट को इग्नोर करो, बाकी का प्रोग्राम को ऑब्जर्व करो। ओके, नाउ start 102 is an assembler directive, so delete it. End is an again assembler directive. What happened? दो बदल दो। Hello, am I audible? Yes, ma'am. Hello. Okay. So start and end, these are not the executable statements. That's why I'm deleting it. Okay. So the third step is what? कि जो भी आपके मशीन कोड सॉरी सिंबॉलिक ऑफ कोड है उनको मशीन कोड से क्या करो, रिप्लेस करो। तो रीड क्या है, जो हमें आगे हमने टेबल बनाया था एक, वहां पे जाके हमें क्या मिलने वाला है, उनका मशीन कोड। सॉरी यहाँ पे ओके, तो रीड का मशीन कोड क्या है, 09। ओके, तो आपको आपके प्रोग्राम में रीड जहां पे भी है वहां पे आपको क्या करना है, 09 को रिप्लेस करना है। तो कहाँ गया वो, जहां जहां रीड है वहां पे आपको क्या करना है, 09 को रिप्लेस करना है, 09 109। अगेन नेक्स्ट लाइन पे भी क्या है, 09 है, सॉरी रीड है तो 09 वहां पे भी लिखना है। ओके, नाउ मूव आर, अगेन गो टू दैट टेबल। मूव आर का एक बार कोड देखो, आई थिंक इट शुड 4 और 5। 04 है, ओके, सो 04 मूव आर का है तो 04 यहाँ पे लिखता है। ए रजिस्टर का ऑफ कोर्स क्या होगा, 01 रहेगा फ्रॉम दैट टेबल। ओके, एड के लिए भी क्या रहेगा, 01। 0। ARG के लिए भी क्या रहेगा, अगेन 01। गिव दिस स्पेस इन बिटवीन। मूव एम के लिए आई थिंक रहेगा 05। आप एक बार टेबल भी चेक कर लेना। अगेन ARG के लिए क्या रहेगा, 01। प्रिंट के लिए क्या रहेगा, रीड के लिए 9 था तो प्रिंट के लिए रहेगा 10। फिर भी एक बार चेक करो, ठीक है। स्टॉप के लिए रहेगा 00। ओके, और इन दोनों को कुछ नहीं करना है, ठीक है, इन तीनों को, सॉरी। ओके, तो ये है आपका बाइनरी कोड और मशीन कोड यू कैन से, और ये एक्चुअली में बाइनरी लैंग्वेज में होता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग इट एज एन डेसिमल। तो जितना भी हमने किया है वो है आपका बाइनरी कोड। तो ये एक्चुअल में आउटपुट हमें ये चाहिए, ये हमने मैन्युअली किया है, एज अ प्रोग्रामर किया है। अभी ये सारी चीजें असेंबलर किस तरीके से करता है, किन स्टेप्स के थ्रू करता है, किन पासेस के थ्रू करता है, ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर, एनी डाउट? Yes, any doubt? Okay. No, ma'am. No, no. So there is one more program. Take a screenshot of it and solve it by your own. Okay. After that, we will start the last part of this unit is assembler. How to build an assembler. So this is one question for you. So screenshot लो उसका और इसको solve करने के लिए try करो, ठीक है। In next lecture we will start the assembler. It has two types, pass 1 and pass 2. pass 1 का आउटपुट क्या होता है, pass 2 का आउटपुट क्या होता है, फाइनली हमें मशीन कोड कैसे मिलता है, ये सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। ओके, एंड ये जो है सम, ये 5 मार्क के लिए इन सेम में भी आता है और इन सेम में भी आता है। आपको एक प्रोग्राम दिया जाता है और आपको pass 1 का आउटपुट दिखाना होता है, कभी कभी pass 2 का दिखाना होता है, कभी दोनों का भी दिखाना होता है, ठीक है। सो इसके आगे जो भी आपका जो भी पार्ट होगा, थियोरेटिकल प्लस कैलकुलेटिव पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ एग्जाम, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अभी।
Yes, any doubt? Hello, any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay, let me download the attendance sheet. हम्म? हाँ 11:30 नहीं. Okay, you people can